Hi everyone. In this video, I'll be discussing branch and bound method to solve the integer linear programming problem. Okay. So, first of all, what is the definition of integer linear problem? Okay. So here the definition. A general linear programming problem is given by maximize or minimize z equal to cx subject to ax is less than or equal to or greater than or equal 0 and the variable x is greater than or equal to 0. Okay, this is the standard form. Okay, and the variable x here, the variable x can take any real value x is greater than or equal to 0 in some practical application. Okay, it follows that the variables x1, x2, xn are non-negative integers, non-negative integer, because it is a integer programming problem. So, right, then the problem is called integer linear programming problem. Okay, integer linear programming problem, ILP. So to find the solution of ILP, we followed two methods. One is branch and bound methods and cutting plane method, which is also called Gomuri cut plane method. Okay, Gomuri method. So today I'll be discuss branch and bound method. Okay, so let's start. Actually, branch and bound method. एक एग्जाम्पल के थ्रू ब्रांच एंड बाउंड मेथड का पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो चलिए सी, this is a given example. Use branch and bound method to solve the following ILP. Maximize z equal to 7x1 plus 9x2 subject to minus x1 plus 3x2 is less than or equal to 6. This is first. 7x1 plus x2 is less than or equal to 35. This is 2. And third, x2 is less than or equal to 7. This is third. Okay. Now, and all the variables x1, x2 is greater than or equal to 0. Also x1, x2 belongs to set of integers. Okay. Now, first let us define given problem as a LP1, LP2 like that, ऐसे करके चलेगा. हाँ ठीक है. पहले LP1 क्या होगा, जो गिवन प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज दिस. ओके, वही LP1 हो जाएगा. ठीक है, वही हमारा LP1 रहेगा. मैक्स जेड इक्वल टू 7x1 plus 9x2 subject to this first two and second third constraints. Okay, and x1, x2 greater than 0. So first of all we find the points of first, second and third constraints. Okay, first वाले का जो minus x1 plus 3x2 is less than or equal to 6, इसका points क्या हो जाएगा. Okay, when x1 0, x2 equal to 2. ओके, ये पॉइंट निकलना सभी ऑलमोस्ट जानते हैं, फिर भी व्हेन x1 0, x2 इक्वल टू 2 एंड व्हेन x2 0, x1 क्या हो जाएगा -6. ओके, तो ये दोनों पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन का. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स. एंड सेकेंड का क्या है, -7x1 plus x2 is less than or equal to 35. That means when x1 0, x2 equal to 35. ओके, यहाँ पे तो
इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे x2 को जीरो x1 को जीरो नहीं लिया है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हो जा रहा है, तुम कुछ भी लो, बस इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है x1 इक्वल टू 5 लिया है, ठीक है। सो ये 35 हो जाएगा, तो x2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। when x1 equal to 5 x2 0 and when x1 equal to 4 that means x2 equal to 35 minus 28 that means 7. So second point is 4,7. So this is the second point, and third constant x2 is less than or equal to 7, that means x2 equal to 7. This is a line, so 0,7 is the point of third constant. Okay, now we solve this by using graphical method. Okay, so देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट प्लेस कीजिए, ये जो है एक फर्स्ट लाइन, ओके, दिस इज 0,2, दिस पॉइंट इज 0,2 and this point is minus 6,0. so join that 2 points, we get this line, okay, first wala. and the region किस तरफ होगा, यहाँ पे देखिए एक नंबर इक्वेशन में minus x1 plus 3x2 is less than or equal to 6. so if we put x1 x2 equal to 0, that may so 0 is less than or equal to 6, obviously satisfy the equation. So the region of this line is origin की तरफ होगा, okay. so इस तरफ होगा origin की तरफ, इस तरफ होगा इसका origin region. now second line क्या है, 5,0 and 4,7. 5,0, this is 5,0, okay, and 4,7 is here, okay. so if we join these 2 points, then you get second line, okay. this is first line and this is second line, and where the region here also you can see here 7x1 plus x2 is less than or equal to 35. so if we put x1 x2 equal to 0,0, then 0 is less than or equal to 35, that means satisfy the equation. so origin की तरफ इसका भी रीजन origin की तरफ मिलेगा, okay. so and third line is 0,7. this is the equation of x equal to 7, okay. so this is third. also see x2 is less than or equal to 7, so a भी origin की तरफ मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन रीजन तो ये आ रहा है ना, सबका रीजन इस तरफ origin की तरफ, तो कॉमन रीजन यहाँ पर ये आ रहा है, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट. सो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन जो है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको सॉल्व करके x1 x2 का वैल्यू निकालिए. यहाँ पे मैंने किया है फॉर f x1 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x1 का वैल्यू निकलेगा 9/2, दैट मीन्स 4.5 एंड x2 इक्वल टू 7/2 3.5. ओके, सो f पॉइंट हो जाएगा 4.5 एंड 3.5. ओके, नाउ क्वेश्चन इज गिवन हेयर. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या गिवन है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या गिवन है देखिए, मैक्सिमम 7x1 प्लस 9x2. कौन सी पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू देगा ये, ठीक है. यहाँ पे जो फिजिबल रीजन हो गया देखिए आप. सो ये जो फिजिबल रीजन, ये रेड वाला आप देख रहे हैं, ए एफ एंड बी, ओ ए एफ बी. इन LP1 फिजिबल रीजन इज ओ ए एफ बी ओ विथ एक्सट्रीम पॉइंट्स. क्या क्या एक्सट्रीम पॉइंट है, ओ ऑरिजिन 0,0, ए 0,2, एफ 4.5, 3.5 एंड बी 5,0. अब इस वॉल पॉइंट, चारों पॉइंट मिला, इस चारों पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखिए कौन सी पॉइंट्स में
सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो 0 में तो 0 ही आएगा। ए जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x1 प्लस 9x2, दैट मीन्स 9 इंटू 2 18, ओके। एंड एफ 4.5 3.5, ओके। सो यहाँ पे आपको 63 मिलेगा। एंड बी में जब 5,0 पुट करेंगे ये मिल जाएगा 7 इंटू 5, एंड x2 तो 0 है तो ये हो जाएगा 35। सो सबसे ज़्यादा मैक्स वैल्यू देगा आपको f पॉइंट विच इज 4.5, 3.5, 63 मैक्स वैल्यू मिलेगा, ओके। अब देखिए ये तो हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस एलपी ऑन का, बट ये जो x1 x2 मिला आपको ये नॉन इंटीजर वैल्यू मिला आपको, ठीक है। बोथ आर नॉन इंटीजर, ठीक। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। नाउ लेट अस कंसीडर x1 सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है इन दोनों में से, फिर मैक्सिमम कौन है 4.5 एंड 3.5 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन 4.5। सो लेट अस कंसीडर x1 इज द ब्रांचिंग वेरिएबल, ओके, जो ग्रेटर देन है, बड़ा है दोनों में से। x1 को ब्रांचिंग वेरिएबल मान लिए, ठीक है। सो मैंने ब्रांचिंग वेरिएबल के लिए x1 स्टार माना है इसको, तो इसको 9/2 दैट मीन्स 4.5, ठीक है। तो 4.5 किस रीजन में आ रहा है 4 एंड 5 के बीच में लाई कर रहा है ना, 4 एंड 5 के बीच में लाई कर रहा है ना। दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो 4.5 इज हेयर ना, दिस इज 4.5, ओके। तो इसके अंदर लाई कर रहा है 4.5, तो हम क्या करेंगे ये जो अंदर का जो वैल्यू है इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको छोड़ करके हम इसका रीजन लेंगे, ठीक है। एक्सक्लूड द रीजन 4 इज लेस देन x1 लेस देन 5। 4 एंड 5 दोनों के बीच का जो भी पॉइंट्स है वो दोनों को छोड़ के हम उसका रीजन कैलकुलेट करेंगे फॉर फिजिबल रीजन, ओके। एक्सक्लूडिंग द रीजन 4 इज लेस देन x लेस देन 5, मतलब x1 ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। इस रीजन में x1 का जो भी वैल्यू है 4 एंड 5 के बीच में उसको एक्सक्लूड करके हम लेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए we get two sub problems adding the constraints x1 is less than or equal to 4 and x1 is greater than or equal to 4। मैंने क्या बोला कि ये जो अंदर वाला पॉइंट्स है इसको छोड़ करके लेना है, दैट मीन्स 4 से कम लेना है और 5 से बड़ा लेना है x1 का वैल्यू। सो क्या हो जाएगा 4 से अगर कम लेंगे तो x1 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 5 से बड़ा लेंगे तो हो जाएगा x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। दैट मीन्स x1 का वैल्यू कौन एक्सक्लूड कर देंगे हम 4,5, ये जो ओपन इंटरवल है इसको छोड़ करके लेना है, दैट मीन्स x1 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा जो LP2 बनेगा और LP3 बनेगा, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा कि ये जो LP1 है, LP1 यहाँ पे देखिए LP1 जो है हेयर, इस LP1 के साथ जो हमारा x1 लेस देन इक्वल टू 4 मिला और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिला। पहले तो LP1 में एक बार x1 इज लेस देन इक्वल टू 4 इसके साथ ऐड कर देंगे, वो एक LP2 बन जाएगा, और फिर इसके साथ लास्ट में एक और कांस्टेंट ऐड कर देंगे, वो है x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। सो देखिए हेयर दिस इज LP2, वही रहेगा सेम LP1 में जो था, सिर्फ एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, वो है दिस x1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ओके। एंड LP3 में वही सेम रहेगा और x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आपका LP3। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो x1 को जब ब्रांच किए, x1 को ब्रांच करने के बाद ये 2 इनइक्वालिटी मिला,
ठीक है। दो इनइक्वालिटी दो LP2 एंड LP3 में ऐड कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप फर्स्टली LP2 को सॉल्व करेंगे, फिर LP3 को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कौन से में इंटीजर ऑप्टिमल वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर उसको फिर ब्रांच एंड बाउंड मेथड ब्रांचिंग करना होगा उस पॉइंट को। ठीक है, तो पहले LP2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले LP2 को सॉल्व करेंगे। देखिए पॉइंट तो सेम ही रहेगा सारा का सारा, x1 x2 x3 का, सिर्फ x4 क्या है, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स x1 इक्वल टू 4। ओके, सो सारा तो सेम रहेगा, सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, वो है दिस लाइन, ये जो है x1 इक्वल टू 4, दिस इज द लाइन x इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 4। ओके, सो लेस देन है, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए लेस देन है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ आपको वैल्यू मिलेगा, रीजन मिलेगा। सो जो कॉमन रीजन आ जाएगा वो A आ जाएगा आपका कॉमन रीजन। ठीक है, और यहाँ पे फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, 0 ओरिजिन O A B 0 4 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ये तो 4 ही रहेगा x1 एंड x2 में से जो x1 में फर्स्ट कांस्टेंट में x1 इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 10/3। ओके, अब देखिए ये 4 पॉइंट 4 पॉइंट, हाँ, ये चारों पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखिए कि कौन सी में मैक्स वैल्यू दे रहा है। ठीक, अब देखिए जेड मैक्स आपको मिल जाएगा, ये तो 0 18 58 मिलेगा और बी में 28 मिलेगा, मतलब इस पॉइंट में ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम वैल्यू किस में देगा, AC में देगा ना, जो सबसे ऊपर है। ओके, सो बाकी सब तो 0 2 4 0 ऐसे करके है, मतलब एक पॉइंट मिल रहे, बाकी सेकंड पॉइंट नहीं मिल रहे। सो एंड C पॉइंट जो है वो 4,10/3 है। सो उसमें हो जाएगा आपका ZC इक्वल टू 58 बन जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जब पुट करेंगे तो, और जेड मैक्स वही हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो और पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन 4,10/3। यहाँ पे देखिए 4 तो इंटीजर है, लेकिन x2 जो है 3.33 आ रहा है, मतलब ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो इसको अब रखिए अभी। अब पहले LP3 को सॉल्व करते हैं। LP3 में सेम रहेगा, सिर्फ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाएगा। x1 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे देखिए x1 ग्रेटर देन इक्वल, दिस इज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन है, दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ इसका रीजन नहीं मिलेगा, सारा का सारा ओरिजिन का मिलेगा, बट इसका रीजन इस तरफ मिलेगा। मतलब इसमें आप देखिए इसका इस तरफ, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ मिल रहा है, और इसका मिल रहा है इस तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे कोई कॉमन रीजन तो मिल ही नहीं रहा, सिर्फ क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, नहीं, हाँ, हेयर फिजिबल रीजन इज ओनली वन पॉइंट, दिस B पॉइंट। ओके, B पॉइंट इज द ओनली फिजिबल रीजन, फिजिबल मैक्स, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन LP3 में, जो कि 5,0 जो कि इंटीजर है। ओके, सो LP3 में इंटीजर आ गया, लेकिन LP2 में तो इंटीजर नहीं आया है। तो x2 में देखिए आप, LP2 का x2 जो है वो नॉन इंटीजर है, तो x2 को हम ब्रांचिंग पॉइंट ले लेंगे। सो x2 स्टार मान लीजिए ब्रांचिंग पॉइंट। सो इसी दैट द प्रॉब्लम LP2 gives a non-integer solution with x2 star equal to 10/3, that means 3.33। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3.33 किसके अंदर लाई कर रहा है, 3 और 4 के बीच में। ओके, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो x2 जो है 3,4 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो 3 और 4 का इंटीरियर पॉइंट है वो सारा का सारा एक्सक्लूड करके बाहर का पॉइंट लेंगे। मतलब 3 ले सकते हैं या 3 से कम लेंगे, और 4 लेंगे या 4 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, लेकिन 3 और 4 के अंदर का जितने भी पॉइंट्स है
इंटीरियर पॉइंट्स, ओके, वो सब नहीं लेंगे, मतलब इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब छोड़ करके हम 3 से कम लेंगे या फिर 4 से ज़्यादा, ठीक है। मतलब x2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो LP2 के साथ एक बार x2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड एक बार x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये दोनों ब्रांचिंग पॉइंट, ये दोनों कॉन्स्ट्रेंट ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा LP4। देखिए आप LP4 क्या बन जाएगा। सो दिस मैंने जो बोला यहाँ पे वही लिखा है, एक्सक्लूडिंग x2 इज लेस देन इक्वल टू 3, इंक्लूडिंग, सॉरी, एक्सक्लूड किसको करना है, अंदर वाले पॉइंट्स को, ठीक है, और बाहर उससे छोटा एंड उससे बड़ा, ये दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है, LP2 के साथ। तो वी ऑब्टेन द फॉलोइंग टू सब प्रॉब्लम्स ऑफ LP2 एज LP2 जो था वो सेम रहेगा, सिर्फ एक और कांस्टेंट बढ़ जाएगा, वो है x2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड LP5 क्या बन जाएगा, LP2 में जो था चारों कांस्टेंट था, वो 4 कांस्टेंट सेम रहेगा, सिर्फ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन जाएगा, ठीक है। सो पहले तो LP4 को सॉल्व करते हैं। तो LP2 जो था, LP2 वो सेम रहेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट ज़्यादा, एक लाइन ज़्यादा हो जाएगा, वो क्या है, x2 इज इक्वल टू 3। x2 इज इक्वल टू 3 कौन सा बन जाएगा, दिस पॉइंट पैरेलल ऑफ x एक्सिस, ओके, सॉरी, ये तो x2 इक्वल टू, हाँ, x2 इक्वल टू 3 दिस लाइन, 6 इक्वेशन x2 इक्वल टू 3, दिस लाइन इज x2 इक्वल टू 3, ओके। और इसका रीजन ओरिजिन की तरफ मिलेगा, ठीक है, और सारा का सारा आप देखिए x2 में, LP2 में ओरिजिन की तरफ मिला था, ठीक है, ओरिजिन की तरफ मिला था। और अगर हम यहाँ पे x3 ले लेंगे तो वो भी ओरिजिन की तरफ, मतलब ये हो जाएगा कॉमन रीजन, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर कहाँ पर, हेयर, कॉमन रीजन आपका ये आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक C एंड D, जो 6 इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को कट कर रहा है वो है C एंड D है आपका 4 इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 1, ओके। सो द फिजिबल रीजन हेयर bounded by OACDBO. These are the extreme points of the feasible region of LP4. Okay. So मैक्स वैल्यू आपको मिलेगा D, सारे के सारे वैल्यू पुट करके देखिए आप, C वैल्यू निकालिए, x2 तो उसमें 3 रहेगा, x2 इक्वल टू जो 3 है वो आप एक नंबर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको C मिल जाएगा। और D आपका x1 इक्वल टू 4 है, x1 इक्वल टू 4, और x2 में एक नंबर इक्वेशन में फर्स्ट वाले कांस्टेंट में अगर आप x1 इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो आपको x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3, ओके। ये हो जाएगा आपका D पॉइंट, D, ओके। सो D पॉइंट में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर पुट करेंगे तो आपको 55 मिलेगा, जो है मैक्स, बाकी सब में इससे कम मिलेगा। सो एंड देखिए आप 4,3 बोथ आर इंटीजर, सो यहाँ पे ये आपका लोअर बाउंड बन जाएगा, ठीक है, बोथ आर इंटीजर, तो इसमें तो ब्रांच का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। आप देखिए LP5 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। LP5 में क्या था, वो जो LP2 में सारा था वो सारा रहेगा, और एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, वो है x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसमें देखिए आप, अगर आप x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेंगे तो उसका रीजन इस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी रीजन कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, दिस इज इनफिजिबल सॉल्यूशन, ओके।
इनफिजिबल. सो x2 लेस देन, सॉरी x2 तो ये नहीं है, x2 क्या है आपका? x2 है दिस लाइन x2 इक्वल टू 4, दिस लाइन इज x2 इक्वल टू 4. ओके, इसका ग्रेटर देन है, मतलब अगर आप x2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. क्या है? सही है? नॉट पॉसिबल ना. सो ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, आउटर ऑफ ओरिजिन मिलेगा रीजन. सो सारा का सारा जो जितना था वो तो ओरिजिन की तरफ मिल रहा था, और इसका रीजन आउटर ऑफ ओरिजिन आ रहा है. तो कॉमन रीजन कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है. सो ये इनफिजिबल हो गया आपका. ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ओके, सो आपका प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और आपको जो फाइनल वैल्यू आपको मिल गया वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन 4,3 एंड मैक्सिमम वैल्यू 55. ये पूरा प्रोसेस को एक ग्राफ में, मतलब ट्री में मैंने पूरा जो ब्रांच है, पूरा ब्रांच एक ट्री के सहारे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. लास्ट में देखिए पूरा एंटायर प्रोसेस. द एंटायर प्रोसेस इज गिवन इन द फॉलोइंग ट्री. सी LP1, दिस इज LP1 वेयर जेड मैक्स इक्वल टू 63 मिला था, और x1 इक्वल टू 4.5, x2 इक्वल टू 3.5 मिला था. तो ब्रांचिंग पॉइंट हमको माने थे कौन सा? जो मैक्स है 4.5, इसको ब्रांचिंग वेरिएबल माने थे. ब्रांचिंग वेरिएबल इज x1 है 4.5. सो इससे 2 मिला था, एक 4 से कम और एक 5 से ज़्यादा x1. ओके, तो LP2 एंड LP3 मिला था. LP3 में दोनों ही इंटीजर मिला था 5,0, तो उससे तो ब्रांच होना नहीं था. ओके, सो LP2 में एक पॉइंट मिला था x2 3.33, जो कि नॉन इंटीजर है. सो नॉन इंटीजर, सो यहाँ से फिर ब्रांच किए थे. ठीक है, ब्रांचिंग वेरिएबल x2 था क्योंकि x2 नॉन इंटीजर था. और उसके बाद हम लोग देख चुके हैं कि LP4 में इंटीजर मिला, LP5 में नॉन फिजिबल मिला, मतलब कोई नो फिजिबल मिला, इनफिजिबल सॉल्यूशन मिला ही नहीं एग्जिस्ट, क्योंकि कॉमन रीजन नहीं मिला. ठीक है, सो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका गिवन प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका. ये तो राइटिंग थोड़ा x1 x2 इज इक्वल टू 4,3 एंड द वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू बन जाएगा आपका 55, z इक्वल टू. ओके, दिस इज द रिकॉर्ड सॉल्यूशन. z max इक्वल टू 55 एंड x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 3. आई होप समझ में आया होगा. ओके, if you satisfied my solution, okay, my way of understanding, my way of solution, okay, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.